probably might join a little later, to kindly spend some time going around the posters they have displayed. So you would realize that the small children have done a wonderful job. Because I would request organizers that please keep some awards for those girls who are, and you can constitute a committee of 2-3 people, and they can go around, identify which are the first, second, third, something like that, and encourage them with this. And then finally, because this is on behalf of the organizers, and the society is partner in the organization. So 2-3 sentences on behalf of the society. ISSRF is the society which concerns about reproductive health, research, development, and I would urge upon all those colleagues, faculty, scholars that please look into the ISSRF website, see the activities it is doing, and if you think that this platform could be of some use to you, we all invite you to join the society as its life member. And finally, the society is publishing newsletters, and you will find all newsletters are in the form of very comprehensive information on particular aspect of reproductive health. In the recent past, there is a newsletter being published by Dr. Deepa. Thereafter, there was another newsletter which was published by Dr. Misra, Pradyuman Misra, that was relating. Deepa published newsletter. She was editor of one of the newsletter, which was related to the issues of the cancer survival, reproductive health of the cancer survivors. The second newsletter came that was related to the reproductive tract cancers. And the third newsletter, I am talking about very recent past. Society has very recent past. Society has been publishing, and it has 14, 15 newsletters, 17 newsletters being published. But the recent past newsletter was addressed on what you call stem cell research. And each newsletter you will find having contribution from all leading people working in the field from different parts of the country, from different primary institutions of the country. So I would like that some of the copies are available at the registration desk. If you have not got it, because we send it to all the members of society, more than 1100 members are there of the society. They are all getting print newsletters. They are also getting e-newsletters. And those who are interested can write to the secretariat of the society. We will provide you even if you are not member, no matter. And finally, I would say, have a very enjoyable evening after some time, maybe around 8 o'clock. Thank you so much. Thank you, Professor N.K. Loya, for putting in words the essence of today's sessions. We have a parallel poster session going on near the Jawaharlal Nehru Auditorium, where we are serving tea. At 7 p.m., we will have a play performance named Chutti by AIM students at Jawaharlal Nehru Auditorium, directed by Akhilesh, Deep and Manish. I cordially invite everyone for dinner at 8 p.m. at Faculty Club Block. Thank you.
पोस्ट तो रखते नहीं है, परमानेंट के बदले में उसमें पेपर से जैसे कि मतलब पेपर करते हैं ना, पेपर में वही पुराना उसमें स्टिंगर्स के बाद कॉन्फ्रेंस हाँ नहीं मिला पता नहीं 1 साल से नहीं मिला। हाँ यस सर के हैप्पी दिवाली ग्रीटिंग्स लिखते हैं ऐसे भी सब नाटक का सवाल, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल चेंजेस और उन सब के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि शायद नाटक के जरिए बहुत कम समय में सीधे सीधे दिखाना काफी मुश्किल है। मुझे लगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसका शायद एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम जब भी कुछ नया करते हैं, हम संभावित दूसरे प्रभावों को शुरू में समझ नहीं पाते। जिस तरह से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जब बहुत ज्यादा बढ़ा, तो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ हमने भविष्य के लिए कैंसर की संभावना को पैदा किया। मैं मूल रूप से साइंस से नहीं हूँ, शायद मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैं ये बात कह रहा हूँ पेस्टिसाइड और कैंसर को जोड़कर सही है। डॉक्टर अल्पना ने सिर हिला दिया, सही है। फिर मुझे ये लगा कि क्या ये हमारे जीवन में भी नहीं होता? हम अपने जीवन के बहुत सारे छोटे छोटे जब निर्णय लेते हैं, तो हम बहुत सारी बातों को उस समय समझ नहीं पाते कि हमारे इस निर्णय का क्या क्या संभावित प्रभाव है। मुझे एक छोटी सी घटना याद है, और वो घटना छोटे बच्चे से जुड़ी हुई है। एक परिवार था, और उस परिवार के अंदर फादर जो है बहुत ही उनका विश्वास था कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हों, समझते हों। उन्होंने एक परंपरा ये डाली कि खाना खाने से पहले घर में सभी को प्रार्थना करनी है। उन्हें लगा कि प्रार्थना करेंगे, बच्चों में घमंड नहीं आएगा और वो खाने की भी इज्जत करेंगे। घर में छोटा बच्चा था, 5, 6 या 7, 8 साल का होगा। उसे बड़े मन से जो है पापा की बात मानी। हर बार जब भी खाना खाने से पहले वो बच्चा भी प्रार्थना करता। एक दिन सभी रेस्टोरेंट में गए। अब रेस्टोरेंट में गए तो खाना आया, बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। पापा ने कहा, बेटा भूल गए? बोला, पापा चिंता मत करो, शेफ को खाना बनाना आता है। पिता तो सोचता था मैं इसके अंदर एक भक्ति भाव और धार्मिक भाव पैदा कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें दूसरा पक्ष नजर ही नहीं आ रहा था। बच्चा सोचता था मम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती, पिता कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो आज का खाना अच्छा हो। तो
ये हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं, हो कुछ जाता है। एक छोटी सी घटना मुझे और भी याद है। मेरा बेटा जब छोटा था तो मैं उसको कहानी सुनाता था। तो मैं एक दिन उसको कहानी सुना रहा था कि बेटा, एक जंगल था, जंगल के अंदर एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में बुढ़िया रहती थी। और जब बुढ़िया रहती थी तो एक बारिश हो रही थी और बुढ़िया अपनी झोपड़ी में थी और बुढ़िया कह रही थी, मैं किसी से नहीं डरती, मैं शेर से नहीं डरती, मैं हाथी से नहीं डरती। मेरा पिता बोला, मम्मी से नहीं डरती। यानी जो मेरी कहानी को बच्चा किस रूप में ले रहा है, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं, कहानियों के अर्थ बदलते हैं, चीजें बदलती हैं। मुझे लगता है जितने भी महान लेखक हुए हैं, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हो, यशपाल हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सभी की कहानियों में जो बहुत सारे सिद्धांत छिपे हुए हैं, जो फिलॉसफी छिपी हुई है, उन सभी को साइंस में बहुत अच्छे तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम उन्हें समझने की कोशिश करें। हमारी इस कहानी में भी एक ऐसा निर्णय है जिसमें निर्णय लेने वाले उस समय नहीं समझ पाए कि मेरा ये निर्णय भविष्य में मुझे किस दिशा में लेकर जाएगा। शायद हमारे सभी साइंटिस्ट, हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए भी समझ होता होगा कि जब हम किसी नए फील्ड में रिसर्च शुरू करेंगे तो उस नए फील्ड में हमारी रिसर्च भविष्य में किस दिशा में जाएगी। और मुझे लगता है कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस में भी यही एक सवाल है कि किस तरह से हम थिएटर, मीडिया, इन सबको जोड़ें। तो शायद यही एक सवाल है कि हम साइंस के लोग कहानियों को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारी ये आज की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है। तो आप कहें तो मैं एक बार नजर मार लूं अंदर। मुझे लगता है वैसे तो सब तैयार है, मैं तैयार करके ही आया था, सिर्फ पर्दे उठाने वाले को मैंने चेक नहीं किया था। प्रसिद्ध कहानी पर आधारित नाटक छुट्टी। और
छोटे के सहारे जीतना चाहते हो? भाई मैं तो जिंदा नहीं हूँ ना, तो फिर तो मैं भी मर जाऊंगा। माखन, अरे छोड़ो माखन, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, तेरे को नहीं होगा, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे हमारा भाई तुमने मेरे भाई को नाराज कर दिया। अरे ऐसे किसी को गिराते हैं क्या? क्या जरूरत थी इतनी जोर से पकड़ने की? ऐसे कैसे करते हैं? हाँ, चलो वो झूला झुलाते हैं। ठीक है जी, मेरी बारी थी, फिर मेरी थी, और फिर मेरी थी। फिर मेरी थी। बाहर फिर से बैठ गया मामा। माखन हट जा, माखन हट जा, नहीं तो मार खाएगा। नहीं हटता, माँ से शिकायत कर दूंगा मैं तेरी। माखन हट जा, नहीं तो मार खाएगा। नहीं हटता। कोई नहीं पापा जी, बैठे रहने दे। बच्चों सुनो, ये चक्रवर्ती जी का घर किधर है? अरे किधर? उधर है। मामा से सिखाई नहीं, ऐसे बात करते बड़े से। हटो। अरे देखा आप लोगों ने, मैंने कब इसे मारा? इसे ने तो मुझे मारा। अब घर जाएगा और माँ से शिकायतें करेगा, और माँ भी इसी की सुनेगी। छोटा है ना, मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं यहाँ बैठूंगा, मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा। अपने मन के हम हैं राजा, बचा के रखते सबका बाजा। अपने मन के हम हैं राजा, बचा के रखते सबका बाजा। अपने मन के हम हैं राजा, बजा के रखते सबका बाजा। अपने मन के हम हैं राजा, बजा के रखते सबका बाजा। हम तो चले अपने घर। माँ, मुझे आज तो देखना बहुत सारा माँ। तू जाता ही नहीं उसके साथ, लेकिन कितनी बार मना किया, उसके लिए बच रहा है तू। माँ, उसने मुझे यहाँ मारा, माँ, यहाँ भी मारा।
यहाँ क्या हो रहा था? ये औरतें ऐसे चिल्ला क्यों रही थी जोर जोर से? 2 गलियां दूर तक आवाजें आ रही थी। क्या बात क्या है? आइए भैया अंदर आइए। माखन, पनीर, बाहर आओ। तुम्हारी मम्मा कहाँ हो? अरे बच्चे, जीते रहो बच्चों, जीते रहो। हाँ बताओ शांति, बात क्या है? अरे भैया क्या बताओ? पनीर ने मुझे परेशान कर रखा है। स्कूल तक की शिकायतें आती है, गाँव भर से इसकी शिकायतें आती है। और मैं अकेली क्या क्या देखूं भैया? घर को देखूं, माखन को देखूं या पनीर को देखूं? अरे धीरज रखो शांति, धीरज रखो। नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं। मुझे तो डर है भैया, कहीं ये माखन के सिर पत्थर से ना मार दे। अच्छा अच्छा नदी में डुबोकर जान ना ले गई उसकी। अच्छा, तुम उसे शहर क्यों नहीं भेज देती मेरे साथ? वो शहर में रहेगा तो अच्छी स्कूल में जाएगा, अच्छी तालीम हासिल करेगा और शरारतें भी बंद कर देगा। भैया भाभी और बच्चे? अरे भाभी और बच्चों की चिंता तुम मत करो, उनको तो मैं संभालूंगा। फटी बेटा, बेटा फटी। हाँ मामा। बेटा कलकत्ता चलोगे मेरे साथ? कलकत्ते? हाँ। कलकत्ते कब जाएंगे मामा? कल सुबह। कल सुबह? कैसे जाएंगे मामा? रेलगाड़ी से जाएंगे। रेलगाड़ी से? अच्छा रेलगाड़ी कैसे चलती मामा? चुप चुप चलती है। चुप 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 चुप। माँ मैं जाऊँ? हाँ बेटा चल। बाघा, माखन, अरे छुटकी, गुड़िया, गट्टू, सुनो 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 सुनो, मैं कलकत्ते जा रहा हूँ। हाँ, और पता है कलकत्ते में क्या होता है? वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती है। मेरे मामा तो 15वें मंजिल पे रहते हैं। और पता है मैं कल कैसे जाऊंगा? रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी 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 कैसे होता है? कैसे होता है? अरे रुको, तुम लोगों के लिए कुछ लाया हूं मैं। चुटकी, ये कंची तुम्हारे लिए। चुटकी, ये तुम्हारे लिए। और पागा, ये तुम्हारे लिए। ऊपर माखन, ये तुम्हारे लिए। लड्डू लड्डू। और बता क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? और क्या? गुलाब। चलो चला 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 के दिखा, चला के दिखा, चला के दिखा। हाँ हाँ। माखन 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 माखन। अरे मैं चलता हूँ, काम में आ रहा हूँ। अरे मैं चलता हूँ। पति बेटा जल्दी करो, रेलगाड़ी का समय हो रहा है। बेटा तू बड़े शहर जाने कलकत्ता, वहाँ जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। और गाँव मम्मी को परेशान मत करना बेटा। नहीं काकी, शहर जाके मन लगा के पढ़ना और शरारतें कम करना। राम 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 राम। काकी फटीक बेटा, शहर में जाके मेरे राजू को भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। माखन, बाबा, फटी शहर जाके हमें भूल तो नहीं जाएगा? नहीं भूलूंगा। वहां से आऊंगा तो तुम लोग के लिए रेलगाड़ी लाऊंगा। ठीक है माँ। हम तो चले अपने घर
अरे आ गए आप? फटीक बेटा, मामी के पैर छोड़। अपनी शांति का बेटा है? हाँ। कितने दिन की छुट्टी हुई है बेटा? बस अब ये यही रहेगा। यही रहेगा? यही रहेगा से आपका मतलब? यही रहेगा से मतलब यही रहेगा हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ। बच्चों को बुलाना जरा। सनी, तनु, गुड़िया, इधर आओ। पापा, पापा, मेरा बैग आएगा ना? नहीं पापा, मेरे जूते आएंगे। हाँ हाँ, सब आ जाएंगे। चुप करो तुम सब। किसी का कुछ नहीं आएगा। जाके तुम्हारे गांव से भाई आया, फटीक उसको लेकर जाओ, उसको कमरे में। और आप एक बार इधर आइए। आपका यही रहेगा से मतलब? यही रहेगा से मतलब यहाँ हमारे साथ रहेगा, हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगा। आपको पता है, आप बोल रहे हो घर की हालत। आपको पता है तनु के जूते नहीं आ रहे हैं, सनी को बैग लेकर आना है, और आप बैग लाने के बजाय नए बच्चे को उठा के घर पर ले आए हो। अरे पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो? ओवरटाइम कर लूंगा, ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अभी तक आपको किसने मना किया था ओवरटाइम करने से? अभी तक करते तो घर का काम ही चल जाता अच्छे से। तो अब क्या बिगड़ गया? अगले महीने से कर लूंगा। पैसे की तो बात आप छोड़िए। आप ये बताइए, जिम्मेदारी तो सिर्फ मेरी बढ़ती है। 3 बच्चों को संभालो, सारे घर का काम देखो, और अब नई एक और जिम्मेदारी। देखो, अपनी शांति का ही तो लड़का है। आप ही ओवरटाइम कीजिए और आप इसको खाना भी दे दीजिएगा। अरे सुनो तो सही। आपको तो बात ही करना बेकार है। अरे सुनो तो। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। हम तो ये ले बेटा, ये ले सनी, साइडों में बेटा, ये ले बढ़िया। जाकर ऊपर से कपड़े उतार के लाओ। फटीक बोलते जल्दी। मैं नहीं लाई। अरे जल्दी नहीं, मैं अभी लेके आया। सनी बेटा, जाकर ऊपर से कपड़े उतार कर लेकर आओ। नहीं मम्मी, अभी हम खेल रहे हैं, स्कूल में जाना है। अरे तुम्हें स्कूल में जाना छोड़ो, कोई खेल बहुत हो गया। जाकर ऊपर से कपड़े उतार कर लेकर आओ। फटीक, अब तुम कहाँ चले? मामी, मैं कपड़े उतारने जा रहा हूँ। तुमको किसने बोला कपड़े उतार कर लाने के लिए? अब ये भी कह पाएगा कि मम्मी से काम करवाती है। अरे अच्छा ठीक है, अब जा ही रहे थे तो ले आओ। 2 कपड़े लाने में कौन से तुम्हारे हाथ घिस जाएंगे? मम्मी देगी मुझको खाना, दिन भर फिर मैं गाऊंगा गाना। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। तुमसे क्यों खाई? हमें लाई कर दे। चलो चलो बैठ। तूने क्वेश्चन कर लिए ना? हाँ मैंने कर लिया। तूने कर लिए? मैंने नहीं तो निकल गए थे ना। Good morning, Good morning, students. Sit down. Thank you, ma'am. Thank you. Sit down. Students, open your history book. Gudiya, page number 40, first paragraph. You read. अकबर रोज़ाने की सीपियाने बहुत लालूदीन मोहम्मद अकबर। Very good. Sunny, He won many battles. His son name was Jahangir. very good. Tanu, He was honored by the title of Akbar the Great. Akbar conquered very large part of India. excellent. Fatiq, अकबर was a great Fatiq fast. scientist. Where is your history book? Call everybody. पीछे 4 दिनों से कुछ कह रहे हो, गुम हो गई, गुम हो गई, गुम हो गई। बाजार में सारी दुकानें भी बंद हो गई क्या? अगर कल भी मेरी क्लास में बुक नहीं लाए तो मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। लेते आऊंगा। लेते आऊंगा। कोने में जाकर खड़े हो जाओ। चलो। His father's
name was Humayun. He won many battles. कल भी मेरी क्लास में अगर बुक नहीं लाए तो मेरी क्लास में रहने की जरूरत नहीं है। रेलगाड़ी 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 तो जी फैला के बाहें टाइम लग जाएगा तुम बर्तन धो के पुकारे फैला के बाहें के पुकारे आजा आजा भतीज प्यारे बस से निकल जाएगा चले यारी की है रेंचरी क्यों बैठा तू कुत्ती यारी की है रेंचरी क्यों बैठा तू कुत्ती यारी की है रेंचरी क्यों बैठा तू कुत्ती हम तो मामा मामा बाद में बेटा मैं काम कर रहा हूँ। मुझे नई किताब चाहिए। मामी से बोलो। मामी हाँ बोलो फटी। मुझे नई किताब चाहिए। नई किताब? अभी तो इसी महीने तो सारी नई किताबें ला के दी है तुम्हें। गुम हो गई। किताब गुम हो गई? बेटा घर की जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है और तो महीने में 4-4 बार किताबें गुम करोगे। मामी मुझे नई किताब चाहिए। फटी मुझे काम करनी। मामी मुझे नई किताब। घर कब चलेंगे? कहा ना बेटा छुट्टियों में जाएंगे। छुट्टी कब होगी? कार्तिक महीने की छुट्टी होगी ना तब जाएंगे। फैला के बाहें माँ पुकारे फैला के बाहें माँ पुकारे आजा आजा भतीज प्यारे यादों की है रेचरी क्यों बैठा तू कुत्ती यादों की है रेचरी क्यों बैठा तू कुत्ती यादों की है रेचरी क्यों बैठा तू कुत्ती क्यों बैठा तू कुत्ती क्यों बैठा तू कुत्ती क्यों बैठा तू कुत्ती माँ माँ हम तो चले
पता नहीं चला। सब जगह देखा? हाँ, पड़ोस में पूछा तुमने? हाँ, पड़ोस में सब जगह पूछकर हम पुलिस में रिपोर्ट करा दें क्या? वो मैं करा चुका हूँ। तुम लोगों ने स्कूल में देखा? स्कूल में कोई है तो नहीं क्या? वहाँ नहीं है। कहीं भी नहीं मिला? नहीं। क्या करते क्या हो यार तुम लोग? वो नया है शहर में, गांव से आया, उसे कुछ पता नहीं, क्या नहीं रख सकते तुम उसका? भाई है वो तुम्हारा, और तुम सभी सबसे बड़े हो तुम तीनों में, क्या नहीं रख सकते अपने भाई का? पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। संबर बाबू, कौन है? ये तुम्हारा बच्चा है, पटेल जिसकी तुमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अरे फटी बेटा, बेटा कहाँ थे, कैसे हो? ये 2 दिन से नाले के किनारे पड़ा हुआ था, बारिश में भीगा हुआ, और देखो इसे तेज बुखार भी है। ये भगवान, बेटा देख जाओ, बेटा देख जाओ। ये किसके बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं। जैसे तुम इसका ख्याल रखते हो, वैसे इसका भी ख्याल रखा करो। जी और इसकी दवा दारू कराओ। जी। आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए। चलो बाबूराम। बेटा मैंने तुम्हारे सबको साफ कर दिया है, वो आती ही होगी। छुट्टी कब होगी? बहुत ही जल्द तुम्हारी छुट्टी होगी बेटा। माँ मेरी छुट्टी हो गई माँ, माँ मेरी छुट्टी हो गई माँ, माँ मेरी छुट्टी हो गई माँ। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। हम तो चले अपने घर को, हो गई अपनी छुट्टी। हो गई अपनी छुट्टी, हो गई अपनी छुट्टी, हो गई अपनी छुट्टी। दिन के समय लैब के अंदर काम करते हुए शाम का कुछ समय निकालकर ये एम्स के ही कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स, उन्होंने नाटक तैयार किया। और शायद मैं अगर टोटल रिहर्सल्स की भी बात करूं तो 8 या 9 से ज्यादा रिहर्सल इन्होंने नहीं ली। और इनमें से ज्यादातर, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, पर शायद काफी कलाकार ऐसे हैं उनका जिंदगी का एक पहला नाटक था। मुझे लग रहा है एक तालियां इसके लिए होनी चाहिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष मेरे यहाँ पर खड़े हैं, बागरा के रोड में हैं, और डॉक्टर आशुतोष की बड़ी इच्छा थी मैं नाटक करूं। इन्होंने इससे पहले नाटक नहीं किया था, तो इनका सवाल था कि क्या मैं नाटक कर सकता हूं। मैंने कभी नाटक नहीं किया। मैंने कहा हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि आपने कुछ गलत तो नहीं सीखा होगा। डॉक्टर आशुतोष कुमार। संदीप की बहुत इच्छा थी, इन्होंने भी नहीं किया, पर इनको लगा कि मैं लाइट्स को ज्यादा एंजॉय करूंगा। और ये लाइट्स को बैठे हुए जब आज सुबह से देख रहे हैं, ये कह रहे थे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और नाटक की हमारी एक जरूरत है, मजा आना चाहिए। जिस तरह से जिंदगी को जीने में मजा आना चाहिए, उसी तरह से हम जो भी काम करते हैं उस काम में मजा आना चाहिए। संदीप अपुर्णी, लाइट्स ऑन। एक छोटी बच्ची जिससे टीचर हमेशा कहते हैं कि चाय की पत्ती ले आओ, पर फिर भी उसका चुलबुलापन खत्म नहीं होता। वो जिंदगी को उतने ही अच्छी तरह से जीती है, उतने ही मजे से जीती है। फिर जब वो पड़ोसन बनती है तो भी वो पूरी तरह से अपने राम राम के अंदर लगी हुई है। नाम दिव्या से ही पूछते हैं। दिव्या, मास्टरनी जी, या फिर राम 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 राम। मुझे लग रहा है थोड़ा सा साइड पे रहना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर,
सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर ही नहीं, जब कबड्डी में है तो कबड्डी की टीम की लीडर, दूसरी टीम करती भी थी। और डॉक्टर रश्मि, आप ही अपना नाम बता दीजिए। Myself Rashmi Togor, Department of Biophysics. जय हिंद। माखन छोटा भाई बड़ा चला, छोटी छोटी शरारतों से फटीक को पिटवाता भी था। रमन कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नेहा जो कि शहर के स्कूल में पढ़ाती भी थी, और इनका बेटा राजू जो है उसके बारे में अक्सर जिक्र भी करती थी। नेहा, हाय मेरा राजू। नाटक के अंदर फटी की माँ, और फटी की माँ जो है गांव के अंदर और सपनों के अंदर भी फटी के लगातार आती रही। प्रतिभा शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स। हमारे इसमें एक छोटी सी बच्ची और भी थी, आपसे छोटा मत मानिएगा, सब बुरा लेकिन वो नाटक में तो छोटी ही थी ना, जब कबड्डी खेलती थी और सब होता था। दीपाली। फटीक शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी कंट्रोवर्सी है इस कहानी के अंदर, और अंत में हमें भी नहीं मालूम अभी तक फटीक जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसने बुखार से तपते हुए एक आराम की सांस ली हो। शायद हम जब रिलैक्स होते हैं वो भी एक तरह से छुट्टी का वक्त होता है, ये मैं भी नहीं जानता, अब फटीक भी नहीं जानते, ये हमारे दर्शकों का अपना एक सीक्रेट है। प्रणव यानी फटीक, और फटीक की मामी जी पारुल सिंह फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और फटीक की ही एक क्लास फेलो नंदा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। मामा जी आप भी बताइए। डॉक्टर भास्कर कृष्णमूर्ति, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। इनके जूते अगले महीने भी नहीं आए, मुझे कब आएंगे बता सकते हैं? कब तक जूते आ रहे हैं आपके? नहीं माँ, अगले महीने मेरे जूते आएंगे। संजीव कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इनका बैग जो फटा था, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले समय में समय बेहतर होगा, सिल भी जाएगा। एकता, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। अक्सर ये हमारी जो टीचर है गलती कर देती थी, स्पेलिंग जब पढ़ाती थी तो टी यू ई कर देती थी, मैं कहा ई तो गलत है, यू ई कर देती थी, मैं कहा ई तो गलत है, सके तो टी यू एस टी ई है ना। इसमें ललित जो है हमारे साथ म्यूजिक में जो सिंगर भी हैं, गाने भी गाते रहे हैं, ललित भारती। और ललित मेरे साथ बहुत नाटकों के अंदर संगीत दे चुके हैं, गाने लिख चुके हैं, और हम कई सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। ललित की एक खास बात मुझे अभी भी याद है। एक बार नाटक था और ऑडियंस में से हमारे कॉलेज के किसी टीचर ने कहा ललित को कि ललित चलने दो, कुछ बढ़िया से फिल्मी गाने होने दो। ललित ने कहा मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, आप ये मत बताइए क्या करूं, हाँ आप मुझे बताइए मुझे किस तरह से आगे यहाँ पर ऑडियंस को संभालें। उन्होंने फिल्मी गाने नहीं गाए और बहुत खूबसूरत आवाज में गाते हैं ललित भारती। हमारे मोनू जो कि मुझे कीपैड के ऊपर, और मोनू के साथ नरेंद्र, मोनू के साथ नरेंद्र शक्ल दिखा दीजिए, ढोलक के। मैं अखिलेश, और मुझे लग रहा है कि हमारे सभी कलाकार हमारी ऑडियंस से बहुत खुश है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ही अच्छी ऑडियंस थी, जिन्होंने हर छोटे छोटे मूवमेंट को बहुत अच्छे ढंग से रिएक्ट किया। इसलिए सभी कलाकार आखिर में एक बार हमारी ऑडियंस के लिए थैंक यू। मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइजर्स में से बताएंगे मुझे कि अभी 9 बजे से करीब 6 बजे तक साइंस कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हम लोगों की छुट्टी कब हो। आप लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी। इनफैक्ट जब कलाकार कहूंगा इनको, अभी साइंटिस्ट नहीं कहूंगा, ये कलाकारों का जब अखिलेश जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसके पहले तक मुझे ये सच्चाई में जानकारी नहीं थी कि ये सब लोग साइंटिस्ट हैं। मैं सोच रहा था कि ये तो प्रोफेशनल है और कोई ऐसा ग्रुप है
जो एक्ट प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने जब ये देखा इट appeared that it is something like a professional group which is going to present the act छुट्टी। मैं सही मायने में कहूँगा कि it is amazing that people from biochemistry background, biophysics background, whatever it is in different disciplines, and जैसा अखिलेश जी ने बताया बहुत ज्यादा इनको समय नहीं मिला रिहर्सल का, उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी इट इज रियली अमेजिंग। और मैं सब लोगों की तरफ से, हमारी सोसाइटी जो ISSRF सोसाइटी है उसकी तरफ से, प्रोफेसर सविता यादव की तरफ से, इनकी कंप्लीट टीम की तरफ से, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी सबकी तरफ से हृदय से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करते हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने आज दिया और हमें अटेंड किया। अखिलेश जी थैंक यू। एंड सभी को आमंत्रित, मैं तो वैसे होस्ट तो नहीं हूँ, पर हम थिएटर वालों की एक खास बात होती है, हम कुछ भी बन जाते हैं। तो आप सभी डिनर के लिए फैकल्टी क्लब में आते हैं। थैंक यू। Institutional leaders that, so then only your whole study, the loop is only closed after proper RCA is done. Because till you remove the root cause, maybe it is shortage of containers or shortage of awareness or even reporting. People are scared to report. If I'll report, because ultimately it takes a round and comes back on the nurse. Where did you leave the needle? Where did you throw the sharp? Or where were the gloves? Or inadequate wearing of gloves? Please don't get scared. And as leaders of the units, as leaders of... My fate. No two individuals are similar to them. And here again, the very important role of environment, the food immunogenic self-help. Because besides this particular gene, environment has a very, very important role. In fact, we have tried to, over the years, our studies, trying to define if the parents didn't have the B27 gene, what is the chance that the child would have? Almost nil. And if one parent had, whether mom or dad or whatever, or if both, and the role of environment, you can see that there is a gradual increase in the risk if both parents have their gene over there. But you also cannot ignore